آپ کو بتاؤں گی نا تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ لوگ کیسے انتظار میں تھے، اور کیسے ان کی دنیا کیسی ہوتی تھی، ان کی آخرت کی تیاریاں کیسی ہوتی تھی۔ یوجولی ہم موت کے بارے میں زیادہ بات کریں نا گھر میں، تو باقی سارے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہت نیگیٹو باتیں کرتی ہو، کچھ پازیٹیو بات بھی کرو، زندگی کی بات بھی کرو۔ آف کورس زندگی کی بات تو ہم سارا وقت ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن موت کو یاد رکھنا ہی تو صحابہ کا عمل تھا بیسیکلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، اس حقیقت کو پہچانیں، اور اس کے بارے میں بات کیا کریں، تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں آخری دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آخر کے لیے کیا مال آگے جمع کیا ہے، ہمارا بینک بیلنس اگلی دنیا کا کتنا ہے، یہ حساب کتاب ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو یہ حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں ان کے قریب ہوا چلتے چلتے، اور میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تو نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے تو اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے مشکل کر دے مشکل ہے۔ ہم دعا مانگتے تھے نا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو یہ دعا آپ مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ دین پہ چلنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ جنت میں پہنچنے والے عمل یہ ہیں، نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2 وہی جو ہم کہتے ہیں نا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ جنت کے دروازے ہیں نا، جیسے نیکی کے دروازے کے اس کے تھرو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نفلی روزے جو ہے نا وہ ڈھال بن جاتے ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ ایوری مارننگ جب فجر کے بعد جو بھی آپ نے 1 پیسے کا دینا ہے یا 1 ملین کا دینا ہے، جو بھی آپ کو آپ کی توفیق ہے اتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری نیتیں دیکھنی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اپنے ہسبینڈ کا، ماں باپ کا، بچوں کا، جس کا بھی آپ صدقہ نکال دیا کریں، کیونکہ ایوری ڈے آسمان سے ہمارے لیے جو رحمتیں ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے جو بلائیں ہیں نا وہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم صبح صبح صدقہ دے دینا، ہم چلاک بڑے ہیں، ہمیں بھی ساری ہم وہ آسان والے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو صبح صبح جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں نا تو وہ اس کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ آگے وہ جو تکلیفیں آنی ہوتی ہیں نا وہ آتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صبح کی دعائیں جو ہیں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ والی جو ہے، تو وہ مجھے تو آنیسٹلی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل 7 گھنٹے کے بعد ٹالانول ہی کھا لیا، جو بھی ہمیں ڈسپرین کھاتے ہیں، تو 7-8 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کو دوبارہ لینی پڑتی ہے۔ تو یہ صبح شام کی دعائیں بھی نا اسی گولی کی طرح ہے کہ آپ نے صبح پڑھی اور مغرب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں فرشتوں کو بھیج دیا، اور جیسے ہی آپ نے مغرب میں پڑھی تو صبح تک آپ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ آیت الکرسی بھی اسی طرح سے ہے نا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر ہمیں عادت ہوتی ہے کرنے کی، تو پھر ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور نمبر 3 بتایا کہ آدمی کی رات کی نماز، مطلب تہجد میں جب وہ اٹھتا ہے نا تو وہ اس کی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔
اور پھر رسول اللہ نے یہ آیات تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بہت پیاری آیا ہے، سورہ سجدہ کی ہے، پڑھا کرے اس کو، کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی پشتیں بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، مطلب وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی امید سے پکارتے ہیں، کبھی خوف سے پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت پیاری وہ آیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا جی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دین کی 4 چیزیں بولی، دین کی چوٹی، دین کی کوہان، دین کا ستون اور دین کی بلندی نام بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد ہے، کہ اللہ کی راہ میں نکلنا. دیکھیے وہ جی آخری اس لیے کہ دیکھیے اور کچھ بچتا نہیں ہے نا، بندہ اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر کر دیتا ہے کہ یا پاک پروردگار میری جان بھی حاضر ہے. تو بات تو پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ پھر بھی بندے کا حق ادا نہیں ہوتا. تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ چوٹی ہے. اب دیکھیں اتنی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد تہجد آ گئی، زکوٰۃ، صدقہ آ گیا، نفلی روزے آ گئے، پھر جہاد آ گیا. یہ ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے، اب انڈر لائن کریں، غور کریں اور لکھ لیں اس بات کو. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روک کر رکھنا، اس کو روک کر رکھنا. معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی ہماری کیا پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے روئے. جیسے پیار سے نہیں کہتے کہ تیرا بیڑا ترے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں کے بل گھسیٹنے والی ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے سوا اور کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کا یاد ہے نا کہ وہ اپنی زبان دانتوں میں یوں ایسے کر کے نا دباتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئی نا تو سارا دین ٹھیک ہو گیا. تو یہ حدیث بھی پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو اس پوری حدیث کے بعد آپ اپنے آپ سے کچھ کویسچن کیجئے گا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میری عمل میں اب یہ کیسے ڈھلے، میں کیسے اپنے آپ کو جانوں کہ کہیں ایسے لوگوں میں میں تو شامل نہیں ہوں، نعوذ باللہ. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کبھی ایسے بات کرتی ہوں کہ دیکھا میں نے ایسا کرارا جواب دیا کہ اس کو پتہ لگ گیا، یا پھر میں کبھی ایسے کہتی ہوں کہ اس کو میں نے اس کی اوقات یاد کرا دی، یا پھر کبھی میں ایسے کہتی ہوں کہ جو میرے جاننے والے بندے ہیں جن سے میں امپریس ہوں، ان کی تو میں بڑی عزت کرتی ہوں. اگر وہ میرا مذاق بھی اڑا لے، اگر وہ مجھے کچھ کہہ بھی دے تو تب بھی میں اگنور کروں اور میں ہنس کے کوئی بات نہیں. لیکن کوئی ایسا بندہ جس کو میں سوچوں کہ یہ میرے سے ذرا نیچے ہے اور اس کی جرت کہ میرے آگے سے جواب دے، اس کو تو میں بےزتی کر کے رکھ کے آ جاؤں. تو ایسی والی ساری چیزیں اپنی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تو یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم زبان سے بولتے ہوئے 1000 بار سوچیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آج انشاءاللہ جی ہم سورۃ الطارق کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. یہ آیات اس میں 17 ہے اور اس میں 1 رکوع ہے، اور یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اگین یہ اسی دور کی سورہ ہے جس میں مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی مٹھی بھر تو ابھی مسلمان تھے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دیتے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ جس دنیا میں تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو یا تم پہ مصیبت ہے تو پھر اس کو تمہیں اجر اس کے کتنے ملیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں. بہت پیارے اس کے اندر سبق ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم. اب اس سورہ کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
दोबारा से आप देखें कसम से शुरू किया है। पहले भी हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पिछली सूरत थी कि क्या कसम खाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कसम है बुर्ज वाले आसमानों की, कि वो क्या बताया था कि आसमान की हिफाजत कैसे की जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सबसे बड़ी अल्लाह की मखलूक है बेसिकली आसमान और ज़मीन, क्योंकि हमें तो वही नज़र आती है ना, हमारी आँख से हम देखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी आसमान की कसम खाई और तारिक जो रात को आने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही बता दिया कि वमा अदराका मत तारिक, अरे इंसान तुझे क्या पता कि ये रात को आने वाली क्या चीज़ है। अन्नज्म साकिब, कि ये सितारा है जो चमकता हुआ सितारा है। हमने पढ़ा था पिछली सूरा में भी, उसी को आप फिर से याद करें कि नज्म साकिब जो था वो शूटिंग स्टार के बारे में, कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि मेरे कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे आसमान में ऐसे शहाब साकिब रखे हैं, और जो कि हमने पढ़ा था ना कि जो जाते थे जिन्नात जाते थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ से खबरें लेने के लिए कि ये तो सिक्योरिटी टाइट है, ये सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सिक्योरिटी सिस्टम की कसम खा के बता रहे हैं। आगे जवाब कसम आएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करते हैं कि आसमान पे जो ये सितारे हैं, इनका काम ही ये था कि ये एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सूरत मुल्क में हमने पढ़ा था, वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहु रुजुमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। तो वो सारी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि आसमानी दुनिया पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजाने के लिए सितारे, खूबसूरत सितारे पैदा किए। और आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बताया कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हर चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा की, कोई चीज़ मकसद के बगैर नहीं है, और जहाँ तक उनका मकसद है वो उस तरह से अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये हमें कहते हैं, फरमाते हैं कि कायनात को देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई हदायत का पैगाम नहीं आया ना, तब भी तुम अगर कायनात को देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाएंगे, अल्लाह की पहचान मिल जाएगी। तुम अपने अनफुस, तुम अपनी ज़ात में देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान मिल जाएगी, क्योंकि पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को, एक हमारे नफ्स के बगैर अलावा हर चीज़ जो पैदा की है वो उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म मान रही है कि जिस मकसद के लिए पैदा किया है ना, वो वही काम कर रही है। हमारा दिल है, वो धड़कने के लिए पैदा हुआ है, वो जिसे ब्लड को सर्कुलेट करता है वो वही काम कर रहा है। हमारी किडनीज वही काम कर रही है, हमारी ज़ुबान उसी तरह से बोल रही है, हमारी आंख वैसे ही देख रही है, हमारा कान वैसे ही सुन रहा है। जिस मकसद के लिए, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ को पैदा किया, वो वही मकसद अपना पूरा कर रहा है। आसमान में देखिए इतने बड़े सितारे, सियारे, मिल्की वेज हम देखते हैं, हम कहकशां देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पे हर चीज़, कोई ऐसा नहीं होता कि वो ऐसी ज़मीन पे आके गिर जाए, क्योंकि उनको हुक्म नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उनको हदायत है। हदायत किसको कहते हैं? रास्ता दिखाना ना। वो कौन से रास्ते पे जाता है, वो कौन से रास्ते से वापस आता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बताया हुआ है, और वो उसी पर अमल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार जो यहाँ पे बताते हैं ना, हम जब भी कुरान खोलते हैं कि ए इंसान, सिर्फ एक तेरी ज़ात, एक इंसान और जिन्नात, दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसी मखलूक हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आज़ादी दी है कि वो अपने मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं, और उसी पर जन्नत व दोज़ख है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक की कसम खा के बताते हैं कि वो कैसे अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, और तुम अपना हाल देखो कि तुम्हें पता भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी तुम्हारी दीदा दिलेरी कि तुम फिर वैसे काम करते हो। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा नज्म साकिब जो है ना, साकिब अरब में जो परिंदा बहुत ऊंचा जाता था ना, उसको भी वो साकिब कहते थे। और साकिब का एक होता है ये सितारा जो है, कहते हैं कि ये जो शैतान है उनके अंदर घुस के उसको फाड़ना, जैसे कहते हैं ना अंधेरे से फाड़ के रोशनी जैसे नज़र आती है, तो इस तरह से भी इसका मीनिंग आता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब ये जो सारी कसम के बाद जो जवाब कसम है ना, वो क्या कह रहे हैं? इन कुल्लु नफ्सिन, कि नहीं हर नफ्स पर, लम्मा अलैहा हाफिज, मगर उस पर एक हाफिज मुकर्रर है। हर नफ्स पर, हर जान पर एक हाफिज मुकर्रर है।
अल्लाह अकबर। अब देखिए ये ऐसी आया पढ़ के ना कभी एकदम से ना अपनी प्रोटेक्शन का एहसास होता है कि ओ माय गॉड, मेरे ऊपर तो हिफाजत के फरिश्ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर उलमा ने इसकी दो तरह से तफसीर किया। एक तो नंबर ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद हाफिज हैं। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया फल्लाहु खैरुन हाफिजा, कि सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। जिस अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें, अब बाकी कायनात की तो मैंने आपको बात बता दी, अब अपनी ज़ात से हम बात करें ना, कि अगर इंसान को पैदा किया तो उसको इस दुनिया में रहने के लिए, उस दुनिया में जीने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरा बंदोबस्त भी किया। ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, बारिश नाजिल की, फल पौधे उगाए, फसलें पैदा की उसके खाने के लिए। उसके बाद अब देखिए सूरज को कैसे फसलें पकने के लिए उसको हरारत दी, चाँद को देखे कि कैसे उन फलों के अंदर जो जायका आना था उसके लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी चीज़ों में आप देखिए जड़ी बूटियां पैदा की ताकि इंसान अपनी, जब वो बीमार होता है अपनी दवाइयां बनाता है तो कैसे करता है। एक एक चीज़ अगर आप देखते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे इंसान को अपनी हिफाजतों में रखा हुआ है। और अब इसके अलावा भी जो हदीस में आता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम कुरान की डिफरेंट आयात से लेते हैं ना, कि अब अगर यहाँ पे ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात हमारी हिफाजत करती है, वो तो हमें पता है, हमने कई दफ़ा पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ वॉचिंग अस ऑल द टाइम, हर वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में है बेसिकली। तो लेकिन कुरान पाक में हम देखेंगे कि इसके बारे में आता है कि मुहाफ़िज़ जो फरिश्ते हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा सूरत आल नाम में कि वह हुवल काहिरु फौका इबादिही, कि वही तो है जो अपने बंदों पर गालिब है। और उसके बाद फरमाया और वो तुम्हारे ऊपर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है। निगरानी मैंने बताया ना, सुबह के टाइम पे भी फरिश्ते नाजिल होते हैं और बरकतें नाजिल होती हैं अगर हम दुआएं मांगते हैं। और फिर अगर जो भी वो कहते हैं ना, तकदीर का लिखा हुआ भी सामने आ जाता है, या हमारी अपनी जो हरकतें होती हैं उसकी वजह से भी जो नाजिल होते हैं, तो ये फरिश्ते ही नाजिल होते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद फरमाया कि उनके ऊपर निगरानी करने वाले फरिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला भेजते हैं। सूरत रौद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि उसके मुहाफिज और निगरान इंसान के आगे और पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अब देखिए कई दफ़ा हमें ऐसे नहीं लगता कि गिरते गिरते ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब मुंह के बाल गिर रहे थे, ऐसे लगा कि किसी ने पकड़ के एकदम से खड़ा कर दिया। वो फरिश्ते होते हैं जो हमें बचा लेते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि मैं खड़ी हुई थी तो ऐसे लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया, तो समझ ले कि पीछे से धक्का भी उन्होंने दिया है, कोई गलत काम किया होगा, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सूरह कौफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 17-18 में फरमाते हैं कि जब इंसान के हर कौल, जो हम बात करते हैं, और फेल, और जो हम अमल करते हैं ना, वो दो फरिश्ते ले लेते हैं, एक इसके दाईं तरफ और दूसरा उसके बाईं तरफ बैठा हुआ होता है। वो जो बात भी करता है इसका मुहाफिज फरिश्ता उसके लिखने के लिए तैयार होता है। सूरत अल इंफितार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, कि बेशक तुम पर हिफाजत करने वाले मुकर्रर हैं किरामन कातिबीन। और ये जो किरामन कातिबीन, ये लिखने वाले जो है ना, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, इतने मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं। और आप देखिए कि अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हम जैसे इंसानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि जो हर वक्त लिखते रहते हैं। यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम अमल करते हो। और हदीस में क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक कामों के लिखने वाला फरिश्ता जो है ना, वो इंसान की दाईं तरफ होता है, ठीक है। दाईं तरफ वाला फरिश्ता जो होता है वो बाईं तरफ वाले पे जो बुरे अमल लिखता है ना, उस पे हाकिम होता है, उसको उसका अमीर होता है जैसे। तो जब बंदा नेक काम करता है ना तो वो दाईं तरफ वाला फरिश्ता लिखता है, लेकिन जब वो बुरा काम करता है ना तो दाईं तरफ वाला फरिश्ता बुरे वाले को रोक लेता है, कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जा, शायद कि ये बंदा जो है वो कोई अल्लाह तौबा कर ले या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर ले, तो इसकी फिर नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह पर देखिए, अल्लाह रहमान है, रहीम है, ऐसे पता चलता है इन चीज़ों से। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ जब मेरा बंदा बुरे काम का इरादा करे तो उसको मत लिखो। जब मेरा बंदा बुरे काम का इरादा, अभी दिल के अंदर है ना, इरादा करे तो उसको मत लिखो। और अगर वो इस पर अमल करे तो एक बुराई लिखना। और अगर वो नेक काम का इरादा करे तो उससे ना लिखना कि नहीं सॉरी, और अगर वो नेक काम का इरादा करे और उसे ना करे, अभी इरादा किया और किया कोई नहीं है, ना करे तो एक नेकी लिख लेना। और जब वो नेक काम करे तो उसकी 10 नेकियां लिख लेना। एक और हदीस में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा जो है ना, ये खूब जानता है कि बुरा काम क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये बुराई करे तो एक बुराई लिखना, और अगर ये तर्क कर दे, अगर ये छोड़ दे, इरादा करे तो अगर कर ले तो एक लिख लेना, लेकिन अगर वो छोड़ दे उस बुराई को तो एक नेकी लिख लेना। अल्लाह अकबर, क्योंकि उसने इस बुराई को मेरे खौफ की वजह से तर्क किया है। कितनी प्यारी बातें हैं ना, कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स इस्लाम में नेक अमल करता है तो उसके नेक अमल का अजर 10 से 700 गुना तक लिख दिया जाता है, और जब वो कोई बुरा काम करता है तो उसकी बुराई एक लिख दी जाती है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस में आता है, ये तो बहुत प्यारी हदीस है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब बीमार होते हैं तो एक थोड़ा गिल्ट होता है कि उस तरह से हम इबादत नहीं कर पाते। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि क्योंकि दवाइयाँ खाई होती हैं, नींद की दवाई बहुत स्ट्रांग होती है, बंदे से फजर में नहीं उठा जाता, और कई दफ़ा जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी तहज्जुद रह जाती है, जो दर्द की वजह से वो उस तरह से तस्बीहात भी नहीं हो पाती हैं। तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान को कोई बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत करने वाले फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके वो नेक अमल जो वो अपनी सेहत के ज़माने में करता था वो सब लिखते जाओ, जब तक कि वो मेरा बंदा उस बीमारी की कैद में है। अल्लाह अकबर। तो जो वो सेहत के ज़माने में अमल करता था ना, वो बीमारी के ज़माने में अगर नहीं कर सकता तो उसी तरह से उसके वो अमाल लिखे जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बंदा तो नेकी करके भूल जाता है, लेकिन वो नेकी क़यामत तक, ये सदका जारिया की बात है, क़यामत तक वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बंदा क़यामत के दिन अपने वो नेकियों को देखेगा ना कि ये क्या, मैंने तो ये इतने बड़े काम नहीं किए। तो ये वो सदका जारिया होगा कि जो उसने नेक काम किए थे, जो उसने खुद अमल किया और दूसरों को उसका बताया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेकी का लिखते जाएंगे, और क़यामत के दिन वो ओहद के पहाड़ जितनी बड़ी नेकियां होंगी। और इसी तरह से वो बंदा जिसने कोई बुरे काम किए और उसको देख कर किसी दूसरे ने उसको कॉपी किया और बुरे काम किए या बुरा अमल किया या कुछ भी आप समझ लें, तो ऐसे बंदा भी क़यामत के दिन अल्लाह अकबर वो देखेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां उसके सामने आएंगी कि वो घबरा जाएगा कि मैंने तो ऐसे काम नहीं किए हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वहाँ पे वो बताएंगे कि ये वो काम था जो तेरे पीछे चलता 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 क़यामत तक पहुँच गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए इन चीज़ों से। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, फरिश्ते इंसान को किस चीज़ से हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। क़तादा कहते हैं कि वो तुम्हारे अमल, तुम्हारा रिस्क और तुम्हारी मौत और हयात की हिफाजत करते हैं। और जब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं कि ए आदम, वो तुम्हारी रूह कब्ज़ करके तुम्हारे रब के पास ले जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है। और मुजाहिद कहते हैं कि ये फरिश्ते इंसान की हर बात की हिफाजत करते हैं, हत्ता कि वो बीमारी की हालत में जो कराहता है ना, जैसे हाय हाय करना, वो तक भी लिखते हैं। अल्लाह अकबर। कल भी ने फरमाया कि ये फरिश्ते इंसान की कब्र तक पहुंचने तक उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी बातें हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हिफाजत का निज़ाम है ना कायनात में, पूरी कायनात में, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे हर तरफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी एक आँख पे भी कहते हैं 7 फरिश्ते होते हैं। ऐसे नहीं होता, देखिए अगर सॉरी, अगर इंसान, हमें तो नहीं पता ना मखलूक बाहर कैसी है, जिन्नात हैं, इसके अलावा इतनी मखलूक है, इंसान बाहर जाए ना
تو उलमा कहते हैं कि अगर मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा कि इंसान की बोटियाँ नोच के खा जाएँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को हिफाज़तों में रखा हुआ है। अब देखिए जर्म्स है, किस तरह से इतने इंसान के अंदर इतने जर्म्स है, कहते हैं कि पूरी जितनी इस दुनिया में इंसान है ना, उस उनकी काउंट करो ना तो उससे ज़्यादा जर्म्स हमारे अंदर है। अगर आप सूरज में की रोशनी में कभी देखो ना तो किस तरह से आपको छोटे-छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं। हर जगह पे जर्म्स हैं। कैसे हम बच जाते हैं? कभी बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं कि वायरस लग गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सारा वक़्त तो हम ठीक होते हैं ना जब, तो उस वक़्त भी हिफ़ाज़त के फ़रिश्ते हमारी हिफ़ाज़त करते हैं। जब हम घरों से निकलते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं? खुद भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी उस बंदे की हिफ़ाज़त हो जाती है। हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अब उस बंदे की हिफ़ाज़त हो जाती है। रात को सोते वक़्त हम पढ़ते, सोने से पहले पढ़ते हैं, बिस्तर पे जाके हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सुबह शाम की दुआएँ क्या हैं ये सारी? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफ़ाज़त में अपने आप को देना है। जब बच्चे घरों से निकलें और फिर आप अगर कई दफ़ा होता है बच्चे भूल जाते हैं, नहीं करते, आप पीछे से पढ़ के ज़रूर उनके ऊपर दम कर दिया करें कि या पाक परवरदिगार तेरी हिफ़ाज़त में खैर से जाएँ, खैर से आएँ। सभी लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी हिफ़ाज़तों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हर नफ्स पर एक हिफ़ाज़त करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किए हुए हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक। फिर इंसान को जैसे अपनी औकात नहीं ज़ाहिर करानी होती, उस कितनी दफ़ा हमने ये पढ़ा ना कि पर इंसान तू देख तो सही मिम्मा खुलिक कि तू किस चीज़ से पैदा हुआ है। तू फिर भी नहीं पहचानता अपने रब को कि तेरे रब ने तुझे क्या-क्या नहीं नवाज़ा, तो उसकी नेमतें तो देख कि तुझे ये ख़्याल नहीं आता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तेरी जो नेमतें दी अगर वो वापस ले ले तो तेरा क्या हो? अब देखिए इतनी सी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फॉर एग्ज़ाम्पल सुनने की नेमत दी है ना हमें, एकदम से ऐसे कभी लगे कि हम नहीं सुन सकते तो क्या हाल होता है बंदे का। हमारे तो दाँत में इतनी सी दर्द होती है तो सर के कंधे और गर्दन पे सारी इस तरह अकड़ जाता है कि इतनी सी नेमत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस ले लें तो इंसान को एहसास होता है कि मेरे पास क्या-क्या नेमतें थी। और स्पेशली आप देखें जब हम बड़े होते हैं, हमारी उम्रें बड़ी होती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की थी वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम कलर कर के अपने आप को समझते हैं हम जवान हैं, वो भूल ही जाते हैं कि हमारे पास वो वक़्त आ रहा है। फिर ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें, अब देखिए हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, उस तरह से बंदा फ़ोकस नहीं कर पाता जिस तरह से जवानी में फ़ोकस करता है। ये सारे अलार्म हैं जो इंसान को बता रहे होते हैं कि तू आहिस्ता-आहिस्ता किस हालत में जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर यहाँ पे इसीलिए याद करवा रहे हैं कि इंसान तू भूल गया है क्या? फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक कि तू किस चीज़ से पैदा हुआ है। और फिर खुद ही बताया कि खुलिका मिन माइन दाफ़िक़ कि तू पैदा किया गया पानी से जो उछलने वाला है, यख़रुजु मिन बैनल सुल्बि वत्तराइब कि वो जो निकलता है दरमियान से पीठ और सीने की हड्डी से। अब देखिए साइंसदान अब हैरान होते हैं कि